So hello everyone and welcome to Career Launcher. So I hope you are aware that every Sunday at 8 p.m. we are doing the static GK. So this is actually the same session, but this is now have become part of last lab series and all, and this is actually important for CLAT, ALET, SLAT, and slightly longer. It will be roughly around 1 hour session. So am I audible and visible? If everything is fine, please write yes in the comments. So I've told you that what I'm doing is actually I'm asking questions from NCRT books and standard government exams, because these questions are actually repeated in different exams. Okay. So that is what I'm doing it. This is sort of a practice and all. So am I audible and visible? Everything is fine. So let us begin with the first question. Yes. Good evening, everyone. Good evening, guys. And okay. Here's the first question. Please, you have to read it and then answer it. And whenever I'll be giving you questions, you are not supposed to just answer it, but if you know a little bit more, you can write about it. Okay. So the river most mentioned in Vedic literature, actually specifically Rig Veda, is, yes, Venkat and Deeptakshi, you both are right. Sindhu, actually also called as Sapt Sindhu करके mentioned होता है ना. Now, can you please tell me Sindhu river is which river in English? Like, we do not use the word Sindhu. We use some other word in English language. What is that river? Anyone? Yes, Sub Sindhu, the name region. Yes, Deeptakshi, right. It's actually Indus river, है ना? ठीक है. अच्छा, one more thing. We are talking about Vedas. ठीक है, अभी मैंने ऋग्वेद की बात की. So, can you please tell me all the 4 Vedas in chronological order? That which came first, then who was the second one, then the third one and fourth one? कोई बता सकता है सही chronology वेदास की? कमेंट्स में. So Indus river की we were talking about है ना, सब सिंधु. तो मैं Indus river दिखा देता हूँ. So here is India, this is Pakistan. ये वाली ऐसे ऐसे चलती है. This is actually it goes like this. Indus river. पता है एक बार क्वेश्चन आया था, आई थिंक स्लैट या MHCT किसी में, कि it is a river which starts near Lake Mansarovar. Near Lake Mansarovar ऐसे लिखा होता in Tibet, goes to India, then goes to Pakistan and falls in Arabian Sea near Karachi. ये था. ये अरेबियन सी हो गया और स्पोर्ट को कराची पोर्ट कहते हैं. सो विच रिवर इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, ऐसे सवाल है. यस, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. यस वेंकट, वेरी गुड. सिया, दीप्ताक्षी, यू ऑल राइट, ग्रेट. सो यू ऑल नो अबाउट द 4 वेदास आल्सो. ठीक है. सो लेट मी राइट इट सिंस वी आर डिस्कसिंग इट. ऋग्वेद इज द फर्स्ट वन, then ऋग्वेद, सामवेद, then यजुर्वेद, and then अथर्ववेद, है ना. And this is in chronological order. Okay. Okay. So this you should be knowing it. The next I have just discussed about Indus River. ये किसी एग्जाम में आया था क्वेश्चन. That so the answer was Indus River. Actually इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है ना, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज. So these are prominent tributaries and all. Okay, let's move on to the next one. The question number 2. देखो मैं इस क्लास में जो क्वेश्चंस दूंगा वो सिर्फ नॉलेज नहीं, but you have to have some sort of common sense and thinking ability also. Which of the following were common to both Buddhism and Jainism? So both arose somewhere around 400, 500 BC के around, है ना. So what was the thing? Avoidance. और ये देखो आंसर ये है ABCD. Here it is. ठीक है. The first is avoidance of extremities of penance and enjoyment. Do you think this is the case in both Buddhism and Jainism?
ये क्या दर्शा रहा है? ना ही आप पेनेंस, बहुत एक्सट्रीम पेनेंस की तरफ जाइए, ना ही एक्सट्रीम एंजॉयमेंट की तरफ जाइए, है ना? बल्कि मिडल में कहीं रहिए। Yes, and the concept of middle path is associated with Buddhism. Gautam Buddha's idea of middle path. I hope you are aware of this. Jainism में थोड़ा सा पेनेंस की बात है, ठीक है, मतलब Buddhism is more about middle path and all. They rejected authority of Vedas. Yes, denial of efficacy of ritual, non-injury to animal, है ना, जिसको कहते हैं actually ahimsa. This concept is both in Jainism and Buddhism. ठीक है, so 2, 3 and 4. So the right answer is actually B is the right answer. ठीक है, ये मिडिल पाथ की जो बात है ना, वो गौतम बुद्धा टॉक्स अबाउट मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग जिसको कहते हैं. दिस इज द वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म. एक्सट्रीमिटीज नहीं है, नहीं एक्चुअली आई विल टेल यू. एक्चुअली क्या है ना, मिडिल पाथ में की बात करते हैं. जैनिज्म में थोड़ा सा पेनेंस की बात कही गई है. देयर आर सम इंसिडेंट्स, ठीक है. सो दिस इज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन अ वेरी स्टैंडर्ड गवर्नमेंट एग्जाम एंड दे सेड कि आंसर वुड बी बी. ठीक है, फर्स्ट. सेकंड थिंग इज, हाँ, Jainism में there have been incidents where actually like you talk about especially Digambar Jains, they talk about it, living a life of monk. I hope you are aware. ठीक है, so there are some incidents where actually extremities of penance is there. ठीक है, जैसे आपने एक प्रैक्टिस सुनी होगी, सल्ले खाना. Have you heard this practice? Just Google search after the class is over. ठीक है. So the right answer is B is the right answer to this question. Okay, yes. Now let's move on to the next question. देखो, ये मैं I'm not very much expert in any religion, but I'm telling you about with respect to whatever the government exam gave the answer and whatever is taught in standard books, NCERT books. ठीक है. The next is question number 3. Who among the following is known for the book of medicine? बहुत famous book है, and actually the author is considered as the father of Ayurveda. मतलब not exactly father, but one of the founder of Ayurveda. Yes, Dharani, Gargi, Titamsh, very good. सुश्रुत उनकी किताब है, सुश्रुत संहिता. It was written during Gupta period. ठीक है, तो and it is one of the foundation text of Ayurveda. तो ये बहुत प्रोमिनेंट है. यस, प्राप्ति, सिया, तानसी, वेंकट, यू ऑल राइट, है ना. He's considered according to G.D. Singhal, he is considered as father of plastic surgery and all. Foundational text of Ayurveda ये सुश्रुत संहिता. ठीक है, यस, मिशिका, दीप्ताक्षी, यू ऑल राइट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें से बहुत सारे एनसीईआरटी बुक से ही उठाया हुआ है, एंड आई नो कि सब नहीं आंसर कर पाओगे, तो एक दो से आप मैच करा के आराम से कर लोगे. ये सब एक तरह से समझ लो रीजन है, बल्कि यहाँ पे आपको टेम्पल्स भी मिलेगा, पॉपुलर टेम्पल्स, एंड दीज आर द एम्पायर और डायनेस्टी ईयर. समझ सकते हो ना. Okay, no problem. Future student, still you can attempt it. ठीक है. एंड कुछ तो आप बता सकते हो, जैसे देवघर इज वेरी फेमस, यू विल फाइंड अ टेंपल एंड इट इज एसोसिएटेड विद गुप्ता, है ना. ये तो आपने सुना होगा, चालुक्यास ऑफ बादामी, सी का 1, ये तो आपने सुना होगा, आई एम श्योर. सो यू कुड हैव एलिमिनेटेड बी एंड सी. ए का 4, सो द राइट आंसर इज ए. राइट आंसर इज दिस, ए का 4, बी का 3. चंडेलास ऑफ बुंदेलखंड, यहाँ बुंदेलखंड में ही मिलेगा, है ना. खजुराहो टेंपल इज वेरी फेमस. Then Chalukyas of Badami and Pallava of Panamal. So, ठीक है. So A is the right answer. Yes, Sitamsh, Dharini, Dhatri, you are the right. ठीक है. Let's move on to the next one. मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा. खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में बहुत फेमस प्रोमिनेंट टेम्पल है, खजुराहो. ठीक है. देवघर आई थिंक यहाँ पे कहीं मिलेगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश में समवेयर. ठीक है, ठीक है. नहीं, गुप्ता नहीं, एक्चुअली गुप्तास वेर एसोसिएटेड विद देवघर व्हिच इज इन मध्य प्रदेश. अच्छा, एक देवघर झारखंड में भी, बट हियर व्हिच इज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. अच्छा, ये तो डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से लिया गया है. दिस इज वेरी मच देयर. राइट टू लेफ्ट कौन सी स्क्रिप्ट लिखी जाती थी? एक
First tell me this. This is directly mentioned, taken from NCERT book. Anyone? Ancient, कौन सी ancient script? Right to left, जैसे उर्दू लिखा जाता है ना, या अरबी का. Keshav Kedia, we have made a video on important awards. Please go and watch it. Yesterday मैंने बनाया, so it is available on our YouTube channel. Live वाले section में जाना, you will find it. ठीक है. जो एंशियंट एंशियंट जो टेक्स्ट था उसमें खारोस्ती स्क्रिप्ट होती थी, बहुत फेमस स्क्रिप्ट है, जो राइट्स टू लेफ्ट ऐसे लिखी जाती थी. और एक और जो स्क्रिप्ट है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट, ऑल्दो इट हैज नॉट बीन डिसिफर्ड, या हड़प्पन सिविलाइजेशन की. जब आप 11th-12th की बुक पढ़ोगे, यू विल फाइंड दिस, है ना. यस, वेरी गुड, ग्रेट दीप्ताक्षी. हाँ, तो खारोस्ती स्क्रिप्ट या इंडस वैली स्क्रिप्ट जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, यू शुड बी नोइंग इट. नाउ दिस इज द नेक्स्ट वन. मैंने आपको एक क्लास से बताया था कि अशोका का जो ओरिजिनल नेम था, मेंशन था, वो था ये, है ना, देवनम प्रियदर्शी, या पाली लैंग्वेज में देवनम पिया दासी लिखते हैं ना, देवनम पिया ऐसे लिख देते हैं, पिया दासी. इनफैक्ट प्रियदर्शी वर्ड जो है ना, वो अशोका ही का नाम था. ठीक है, ये ओरिजिनली जो है कहां से लिया गया था? नहीं, मिशिका एनसीईआरटी बुक से ही ज्यादातर क्वेश्चन चाहिए, स्टैंडर्ड गवर्नमेंट एग्जाम्स क्वेश्चन और एनसीईआरटी के बुक से आते. ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी, इफ यू हैव रेड इट, बिकॉज सीयूटी का कारण भी क्वेश्चन आता है ना एनसीईआरटी से एंड ऑल. सो मास की एडिक्ट है कर्नाटका में, इसमें लिखा हुआ था अबाउट दिस दैट अशोका's ओरिजिनल नेम इज देवनम पियादर्शी या प्रियदर्शी. ठीक है, सो दिस यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ओके, और इसको डी कोड किसने किया था? बहुत फेमस है पर्सन, जेम्स प्रिंसेप नाम था इनका, है ना. ही वाज अ वेरी फेमस पर्सन फ्रॉम ब्रिटिश एरा हु एक्चुअली डिकोडेड कि ये फाइंड करना कि देवनम प्रियदर्शी कौन आदमी है. दिस इज एक्चुअली यू विल फाइंड इट फाउंड बाय जेम्स प्रिंसेप. Okay, let's move on to the next one. This is from Indus Valley Civilization से कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो है अदर एंशिएंट पीरियड से, लाइक. ठीक है, देखो कुछ तो इतना प्रोमिनेंट है ना कि अगर आपने हिस्ट्री नहीं भी पढ़ी होगी तो भी आप पहुंच सकते हो आंसर पे. मतलब थोड़ा बहुत भी अगर स्कूल डेज में पढ़ा होगा, लिटिल बिट, यू कैन आंसर इट. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द क्वेश्चन इज गिवन, ये देखना कि करेक्टली पूछा जा रहा है मैथ्स या इनकरेक्ट पूछा जा रहा है. ठीक है, दिस आल्सो यू शुड कीप इन माइंड. Anyone? देखो, when you have read Indus Valley Civilization, this is taught कि लोथल में you will find ancient dockyards, so this is correct. सारनाथ में गौतम बुद्धा gave his first religious speech, yes, that's correct, it's very famous. Lion capital of Ashoka सारनाथ में मिलता है, राजगीर में थोड़ी है. सारनाथ lion capital. And Nalanda is actually, Nalanda University was there, so 1, 2 and 4, C is the right answer to this question. Lion capital आपने सुना है? Yes, C is the right answer. Yes, Deeptakshi is right. हाँ, ग्रेट. हाँ, आपने सुना है ये देखा है लायन कैपिटल. इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है यही तो लिया गया है नेशनल एम्बलम में, और इसके नीचे कुछ ऐड किया गया है. दैट्स कॉल्ड एज सतमेव जयते हैज बीन एडेड, है ना, फ्रॉम मुंडक उपनिषद. यस, है ना. सारनाथ लायन कैपिटल, सारनाथ वही बनारस की जगह में है. ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट भी क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, डू नॉट से कि इट्स वेरी डिफिकल्ट. थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, यू विल रीच टू द आंसर. ठीक है, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, आई डू अग्री. मैं इसलिए कवर करा रहा हूं कि कभी एक एग्जाम में पूछते हैं एनसीईआरटी बुक से उठा के क्वेश्चंस. ठीक है, इसलिए मैंने सोचा है कि 8 फोल्ड पाथ और 4 नोबल ट्रुथ्स, ये दोनों कॉन्सेप्ट एक रिलीजन के द्वारा दिया गया. कैसे रिमेंबर करें? देखो, मैं बताते जा रहा हूं. ठीक है, मतलब याद करने का तरीका, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. 4 नोबल ट्रुथ्स, 8 फोल्ड पाथ, ये दोनों कॉन्सेप्ट किसका दिया हुआ है?
यस, दारिणी, हितांशी, दीप्ताक्षी, धात्री, सीतांशी, ऑल राइट। हाँ, प्राप्ति। देखो गौतम बुद्धा की जो फिलॉसफी है, इवन इट इज रेलेवेंट टुडे। देखो मैं आपको याद करने का तरीका ही बता दूं। गौतम बुद्धा ने क्या कहा था? 4 नोबल ट्रूथ्स में पहला क्या बोला था? कि हर जगह दुख ही दुख है, परेशानी, दुख, एवरीवेयर यू विल फाइंड सॉरो। ओके, द फर्स्ट नोबल ट्रूथ। सेकंड इज इट सेड कि देयर इज सम रीजन फॉर द सॉरो, और वो रीजन क्या है, क्यों सारे लोग दुख परेशान है? और उन्होंने बोला अनलिमिटेड डिजायर। ठीक है। और फिर उन्होंने तीसरी बात क्या बोली? कि ये जब तक अनलिमिटेड डिजायर, यूडी आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, अनलिमिटेड डिजायर, वेन एवर अनलेस एंटिल वी कंट्रोल द अनलिमिटेड डिजायर वी आर नॉट गोइंग टू एंड द सॉरो। ठीक है। जब तक इंसान अपनी अनलिमिटेड डिजायर को कंट्रोल, ख्वाहिश को कंट्रोल नहीं करेगा, वो तब तक परेशान रहेगा। एंड देन इन द फोर्थ लाइन ही सेज कि फॉर दैट ही हैज टू फॉलो 8 फोल्ड पाथ। तो उन्होंने कहा कि कैसे करेगा? तो 8 फोल्ड पाथ है, उसको फॉलो करना है। ठीक है। तो कितना अच्छा याद हो जाएगा, इवन टुडे इट इज रिलेवेंट, बल्कि आज ही ज्यादा रिलेवेंट है कि कंट्रोलिंग द डिजायर, कंट्रोलिंग अनलिमिटेड डिजायर, दिस इज द क्रक्स ऑफ गौतम बुद्धा और बुद्धिज्म रिलीजन, कि बिकॉज इट इज अनलिमिटेड है ना, तो लोग आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, एटसेट्रा एंड ऑल। सो दिस 8 फोल्ड पाथ है ना, 4 नोबल ट्रूथ्स, और 8 फोल्ड पाथ ये है। मतलब इसको रटना नहीं है, बट पता होना चाहिए। राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट वैल्यू, राइट एफर्ट, ईमानदारी से कमाइए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, है ना, राइट कंसंट्रेशन, राइट इंटेंशन, ईमानदार नियत साफ होनी चाहिए। These are the things. But this concept of 4 noble truths is even you believe this is very much important even today. ठीक है, that is what you should be knowing. Let's move on to the next one. This is very easy, I would say. Even if you do not know it, you can answer it, because ये इतना फेमस था कि यह सबको पता होगा। जो महाजनपद, 16 महाजनपद थे, उसमें से एक बहुत प्रोमिनेंट हो गया। इट इमर्ज्ड एज अ बिग ह्यूज एम्पायर, एंड आई एम श्योर दैट यू ऑल शुड बी नोइंग अबाउट इट, एंड इट इज नन अदर देन, है ना, 16 महाजनपद था, उसमें से एक बहुत पावरफुल बन गया, दैट्स कॉल्ड एज मगध एम्पायर। उसमें बहुत सारे एम्पायर हैं, मौर्यन एम्पायर, नंदा एम्पायर, हरेनक डायनेस्टी। यस डी, वेरी गुड। वेंकट, धारिणी, दीप्ताक्षी, पार्थ, फ्यूचर एनालिसिस स्टूडेंट, है ना। कैपिटल हेडक्वार्टर्ड एट लेटर हेडक्वार्टर्ड एट पटना, जिसको पाटलिपुत्रा कहते थे, है ना। मौर्यन एम्पायर सब मगध एम्पायर का ही पार्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, है ना, हरेनक डायनेस्टी, है ना, गुप्ता एम्पायर एंड ऑल, तो सब ये है मगध। ठीक है, तो दिस यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। ओके, the next one is which of the following, ये भी बहुत prominent question, was ruling in North India when Alexander invaded India in 326 BC. Alexander was a Greek king, आपको पता होगा, लेकिन जब ये आया बंदा, ये वापस लौट गया था। I hope you are aware, after battle of Hayadaspas in Jhelum river, he returned back. So which empire was ruling in North India? बहुत इंटरेस्टिंग है ये, and I'll tell you in an interesting way so that you can remember these stuffs. Which was ruling? So the right answer is A. ठीक है, नंदा एम्पायर वॉज रूलिंग। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। तो ये ग्रीस से आया था, आई मीन ही वाज फ्रॉम ग्रीस, सो ही स्टार्टेड कैप्चर, पूरा हिस्सा कैप्चर कर लिया। ही रीच्ड हियर, यहाँ पे एक रिवर है झेलम, इसको कहते हैं हयादास्पस रिवर, कश्मीर में मिलेगा, है ना। यहाँ पर बैटल हुई 326 BC, ही वन इट, ही डिफीटेड पुरु या पोरस, नाम सुना है आपने? Alexander defeated Porus. Still Porus was very confident even after getting lost. हारने के बाद भी, after losing the battle, he was quite confident, है ना। तो ये बहुत फेमस स्टोरीज हैं इनकी। तो उसके बाद फिर वो बंदा इंडिया नहीं, मतलब बिहार यूपी या मतलब नॉर्थ भी इंडिया की तरफ नहीं आई। ही रिटर्न बैक एंड लेटर ही डाइड, सुना होगा आपने। तो उस टाइम पर नॉर्थ इंडिया में कौन सा एम्पायर रूल कर रहा था? नंदा एम्पायर बोलते हैं, एंड नंदा के बाद फिर मौर्यन एम्पायर आया। ठीक है, this you should be knowing about it, Alexander's invasion and all. Acha, after the death of Gautam Buddha, we have seen 4 Buddhist council. ठीक है, and this is actually the 4th Buddhist council. कनिष्का रूलर थे, श्रीनगर कश्मीर में actually organize किया गया था, the 4th Buddhist council. And who was the president of that?
there were 4 Buddhist council that happened after Gautam Buddha's death. And these were religious councils where people used to meet, discuss, and all. So the president was actually Vasumitra. D is the right answer to this question. देखो मैं दिखा देता हूँ, कभी कभी मैंने देखा ही एग्जाम्स में आते हैं. फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल प्रेसिडेंट थे महाकश्यप, अजात शत्रु के जमाने में हुआ था, और राजगीर बिहार में जगह, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में. सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हैपेंड, प्रेसिडेंट वाज सब्बा कामिर. And Kal Ashok, it is not Ashok, it is Kal Ashok was the president. Vaishali, Vaishali पटना से क्रॉस करोगे, जैसे the moment you cross गंगा रिवर फ्रॉम पटना, तो उस साइड you will find वैशाली डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, just crossing the गंगा रिवर. Then थर्ड में मोगाली पित्ता तिस्सा था, किंग अशोक के जमाने में हुआ था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल. एंड द फोर्थ हैपेंड एक्चुअली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ किंग कनिष्का, और ये कश्मीर में हुआ था. बाकी तीनों बिहार में हुआ था, मॉडर्न डे बिहार में. द फोर्थ वन एक्चुअली हैपेंड इन कश्मीर. ठीक है, सो दिस यू शुड बी नोइंग इट. ठीक है, एक रफ आइडिया होना चाहिए, बिकॉज मैंने देखा है समटाइम्स दीस क्वेश्चंस आर आस्क्ड. नाउ दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी बुक. सो जिन्होंने भी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी, मैंने क्यों क्वेश्चंस लाए, एक तो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट एग्जाम से पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन, प्लस ये क्वेश्चंस कॉपी किया आता है, जैसे जो भी सीयूईटी या स्लैट एमएचसीटी एग्जाम देते हो, तो वो सब एनसीईआरटी से ही उठाते हैं बहुत सारे कंटेंट. ठीक है, दैट इज व्हाई आई हैव गिवन दिस ऑल्सो. अभी मैंने देखो कुछ तो रिपीट हुआ है. अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया लोथल में डॉकयार्ड था. यस, ए का 2 कहां पर है? ए का 2 यहां है और यहां है. सो यू हैव एलिमिनेटेड ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी. खत्म. इतना तो कर सकते हो अगर कुछ भी नहीं पता है. एटलीस्ट यू कैन सी सर आइदर बी और डी. ठीक है, तो मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज यू शुड लर्न दिस टेक्निक ऑल्सो ऑफ ऑप्शन एलिमिनेशन. इफ यू हैव लर्न समथिंग जस्ट नाउ, यस, ट्राई टू डू समथिंग. कालीबंगा में प्लव फील्ड पाया गया, सो बी का 1. ठीक है, तो एंड फिर सी का 4 धोलावीरा में इंस्क्रिप्शन. देखो धोलावीरा में इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइंस ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट मिला है, प्लस धोलावीरा इज आल्सो फेमस फॉर रिजर्वॉयर, ये भी याद रखिएगा. एंड बनावाली में टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लक्स पिलर. ठीक है, सो आई नो दैट सी और डी वाज डिफिकल्ट, बट यू शुड नो इट. ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर. यस, दीप्ताक्षी दात्री, यू आर द राइट, बी इज द राइट आंसर. धारिणी. इसमें कुछ जो प्रोमिनेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है वो यही है, लोथल है ना. पहले गुजरात में यहाँ पे धोलावीरा है, बिकॉज धोलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था फ्यू इयर्स बैक, 2 इयर्स बैक इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यहाँ रिजर्वॉयर बहुत फेमस है ना. सो दिस इज यू शुड नो दिस. ठीक है, okay, here's the next one. Harshavardhan was the king who tried to, actually he was a king in North India. He wanted to capture the southern India also, but wanted to cross the Narmada river and capture, but he was defeated by which king? बहुत prominent question है. He was defeated by Pulakeshin II. B is the right answer. देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. जब हर्षवर्धन रूलर था, Harshavardhan was a ruler in North India around 600 AD roughly, है ना. There was a very famous person came Harshavardhan when he was ruling from China. His name was Huansang. ये पूछा जाता है ना. So Harshavardhan actually wanted, यहाँ पे नर्मदा रिवर है मध्य प्रदेश में, है ना, नर्मदा रिवर. So he wanted to cross this and actually capture this region, नीचे वाला हिस्सा, but he was defeated by Pulakeshin II of Sahana. So yes, B is the right answer. ठीक है, so ये आपको पता होना चाहिए. Yes, Anmol, Venkat, Dharni, all the right. Now is the next question, and this is also from NCERT book. ठीक है, and NCERT book अगर आपने 11th-12th की पढ़ी होगी तो उसमें साइड में ब्लू बॉक्स होता है. ठीक है, उस बॉक्स से क्वेश्चन है. This was asked in a standard government exam from NCERT book only. ऑथर पूछते हैं कई बार कि मृच्छक कथिका इज रिटन बाय होम, द लिटिल क्ले कार्ट, इसका ट्रांसलेशन है इंग्लिश में. इट इज एक्चुअली सुद्रक एंड इट इज अबाउट ए इज द, यस, फ्यूचर एलएसए स्टूडेंट, यू आर राइट, ए इज द राइट आंसर. एक्चुअली मैं दो हिंट दूं, अगर आप बहुत सारी किताब देखोगे, मालविका, अग्निमित्र, मृच्छक कथिका, ये सब ना ज्यादातर लव अफेयर के बारे में बात की है. ठीक है, सो इफ यू सी दिस टाइप ऑफ ऑप्शन द चांसेस आर वेरी हाई. ठीक है, you said you can go for it. ठीक है, so this is actually mentioned in the NCERT book. साइड में जो बॉक्स होते हैं, ब्लू बॉक्स, उसमें ये क्वेश्चन आया था.
Okay, this one we have discussed about 4 Vedas. Which of them actually talk about magical charms and spells? It is also called as one of the first book of medicine. Yes, Venkat is right. Atharved. ठीक है, सो अथर्वेद टॉक्स अबाउट इट. सामवेद, साम मतलब म्यूजिक्स वगैरह की बात यहाँ है. ठीक है, सो अथर्वेद, सो सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, एंड यू शुड नो इट. मतलब ये बिलीव किया था कि विद द हेल्प ऑफ चार्म्स एंड स्पेल्स द डिजीज कैन बी हील्ड एंड ऑल. ओके, एम्यूलेट्स में सो तावीज जिसको कहते हैं हिंदी में. ओके, सो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग अबाउट. Yes, the right answer is C. Yes, Dhatri was right, Venkat was right. Now, this is again from NCERT book. The Allahabad pillar inscription is associated with which one of the following? चलो इसका एक और हिंट दे देता हूं मैं. नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहते थे? Who among the following was called as Napoleon of India? ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कई बार. And the answer to this question is same. Actually, Allahabad pillar inscription, if you see, you will find about Jahangir, Ashoka, and Samudragupta. तीनों की बात है. So D is the right answer. He is considered as Napoleon of India from Gupta Empire. So D is the right answer to this question. ठीक है, तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में द राइट आंसर इज डी. बट इसमें एक्चुअली जहांगीर और अशोका के बारे में मेंशन है. जहांगीर के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, एंड इवन अशोका इज नॉट रिटन हियर. हाँ, सो कुछ हद तक अशोका के बारे में. सो इवन सी वुड बी द राइट आंसर. यस, प्राप्ति, वनिशा, वेंकट, यू आर राइट. बट डी इज द राइट. ये सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंटली एनसीईआरटी बुक में मेंशन है वो समुद्रगुप्त के बारे में मेंशन है. ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया ऐसे पूछते हैं कई बार कि हु इज कंसिडर्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया नॉट. Now, this is the next question. This philosophy, अनेकांतवाद, और एक और फिलॉसफी होती है सायादवाद. ठीक है, is a philosophy of what? अनेकांतवाद मतलब क्या होता है? They believe in the idea of pluralism. यानी कोई एक चीज सच्चाई नहीं होती है. Means they believe that yes, the idea of tolerance flows from here. कि ठीक है, एक चीज का कई माने हो सकता है. समझ हो ना? That yes, you believe in this like होता है ना कोई भी चीज का कि yes, so agree to disagree, a sort of an idea of tolerance. Actually it's from Jainism. ठीक है, अनेकांतवाद ओरिजिनल फिलॉसफी जो है वो as far as my knowledge is concerned, it is of Jainism. अनेकांतवाद and सायादवाद. ठीक है, it's a very prominent philosophy. Yes, Vanisha, you are right. B is the right answer to this question. Those who are Jain, at least they should be knowing it. ठीक है, हाँ, so ये आपको पता होना चाहिए. This is a very, very easy question, and I'm expecting all of you to be answering it. ये बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये मत बोलिए ये करंट अफेयर्स का भी पार्ट है. सो डू नॉट से इट इज डिफिकल्ट सर, स्टैटिक मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, बट स्टिल इफ यू हैव रेड करंट अफेयर्स यू शुड बी आंसरिंग इट. यस, राम मंदिर इज नगारा स्टाइल. वेरी गुड, फ्यूचर एनएलसी स्टूडेंट, ग्रेट. नगारा, द्रविडियन और वेसारा क्या है? स्टाइल टेम्पल डिजाइनिंग टेम्पल है, डिजाइनिंग टेक्निक है. हाँ, देखो, नगारा एन से नॉर्थ इंडिया याद हो जाएगा. द्रविडियन आपको पता होगा साउथ इंडिया को द्रविडियन एंड ऑल है ना, मतलब तमिलनाडु रीजन. वेसारा जो है बीच में समवेयर है, कर्नाटका रीजन एंड ऑल. यू विल फाइंड टेम्पल डिजाइनिंग. सो वेसारा हैज इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ नगारा एंड द्रविडियन. ठीक है, तो ये टेम्पल आर्किटेक्चर है. ठीक है, सो ये आपको पता होगा, ऐसे याद रखना. ये वाला हिस्सा का नगारा, द्रविडियन, समवेयर हियर यू विल फाइंड वेसारा. ठीक है, वेसारा स्टाइल टेम्पल डिजाइनिंग आर्किटेक्चर. ठीक है, जैसे राम टेम्पल बनाया गया तो अयोध्या में बनाया गया है ना. सो ऑफ कोर्स इट इज नगारा स्टाइल. ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दोज हु आर वाचिंग माय क्लास केयरफुली कैन आंसर मी वेरी इजीली. बस क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट है, बट इट इज वेरी इजी क्वेश्चन. And if you are watching my class since the beginning of the class, even if you have not read anything, तब आप आंसर कर दोगे. कोर फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म क्या है?
निर्वाण है ना, मतलब मोक्ष निर्वाण अटेन करने के लिए, वेरी आइडिया ऑफ सैल्वेशन, हाउ टू रीच पीएसपी पीयूजी से ए। अभी मैंने क्या बोला था, 4 नोबल ट्रुथ्स, 4 नोबल ट्रुथ्स में गौतम बुद्ध जी क्या बोलते हैं कि देयर इज सॉरो एवरीवेयर, हर जगह परेशानी तकलीफ है। एंड सेकंड थिंग व्हाट ही हाइलाइट्स, द रीजन फॉर सॉरो इज अनलिमिटेड डिजायर, द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर विल लीड टू निर्वाण। सो एक इंसान के लिए इस पूरे नोबल ट्रूथ में यही तो बोला जा रहा है कि अनलिमिटेड डिजायर को कंट्रोल करना है, दिस इज द मेन थिंग, बिकॉज इट इज अनलिमिटेड, यू कीप ऑन आस्किंग वन थिंग यू विल गेट अनदर। आज आपके पास साइकिल है, कल बाइक मांगोगे, बाइक होगी कार मांगोगे, कार है तो फ्यूल फास्ट फॉर एरोप्लेन। ओके, सो दैट इज व्हाट द वेरी आइडिया ऑफ बुद्धिज्म रिलीजन इज एक्चुअली द कंट्रोलिंग ऑफ डिजायर्स। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट यू ऑल शुड बी आंसरिंग। यस दीप्ताक्षी, फ्यूचर एनालिसिस स्टूडेंट था 3 वाला, राइट, ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये अपने स्कूल डेज में पढ़ा होगा। एंड व्हिच पर्सन ब्रॉट दिस कॉन्सेप्ट? Mansabdari was brought by which king? Was popularized. ये नहीं सुना आप लोग? मनसबदारी था अकबर के जमाने में। मनसब रैंक को कहते थे, रैंक ऑफ आर्मी ऑफिसर्स कॉल्ड एज मनसब्स। यस, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, राइट, कभी सुना नहीं, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो यू मस्ट हैव गॉन थ्रू इट। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ रेवेन्यू सेटलमेंट। ये भी एनसीईआरटी में, इफ यू हैव रेड 11th 12th एनसीईआरटी बुक, हिस्ट्री बुक, यू कैन इजीली आंसर इट। This is directly, all are mentioned actually in NCERT book, if I'm not wrong, class 11th या 12th के. हाँ, Dine is from Akbar, yes, NLCI student, right. हाँ, बताओ तो, land allotted to big feudal lords. Village level, Mahalwari, D का 3. So the right answer is B. ठीक है ना, yes, 12th के 3rd book में, yes. देखो मैं बता देता हूँ, आई नो इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर यू बट स्टिल इतना भी मुश्किल नहीं है। लैंड अलॉटेड टू बिग फ्यूडल लॉर्ड्स, जागीरदारी सिस्टम कहते थे इसको। ठीक है, ओके, देन लैंड अलॉटेड टू रेवेन्यू फार्मर्स फॉर रेंट कलेक्शन को जमींदारी कहते थे ना, इस जमींदार यूज्ड टू कलेक्ट इट। ठीक है, द टैक्सेस एंड ऑल। ठीक है, दे वर अपॉइंटेड एज पीपल टू कलेक्ट द टैक्सेस। लैंड अलॉटेड टू ईच पर्सन विद द राइट टू सबलेट मॉर्गेज ट्रांसफर गिफ्ट एंड ऑल। ठीक है, रेवेन्यू देखो, महल जो है ना, महल वाली सिस्टम महल से बना, महल विलेजेस को कहते थे पंजाब एरिया में, तो पूरे उसके लिए। ठीक है, एंड रैयत वाली सिस्टम डायरेक्टली डूइंग आस्किंग टैक्सेस फ्रॉम रैयत, रैयत मतलब शेयर क्रॉपर्स, यानी जो एकदम पीजेंट होते हैं। दिस वाज वेरी प्रोमिनेंट इन महाराष्ट्र रीजन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड ऑल। ठीक है, सो दिस यू शुड बी नोइंग। Okay, the next one is these all are very famous actually bhakti saints, and they all were a student of Ramananda. ठीक है, आपने ऐसे इनमें से इनका नाम जरूर सुना होगा, कबीर का सुना है? कबीर का दोहा, इट्स वेरी प्रोमिनेंट। ही वाज व्हाट? उनका क्या प्रोफेशन था? वीवर, वीवर थे ना। ठीक है, ये आपने सुना होगा, वीवर है ना। एंड रविदास वाज कॉबलर, एंड सेना वाज अ बार्बर, एंड नामदेव वाज अ टेलर। ठीक है, सो आई नो इट वाज स्लाइटली डिफिकल्ट बट स्टिल वी हैव डिस्कस्ड इट। अगर बी का 2 था तो आप एटलीस्ट बी और सी में से कोई एक ऑप्शन तुक्का मारते थे। आई नो एटलीस्ट, हाँ, स्लाइटली डिफिकल्ट बट ओके। नाउ हियर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, those who have okay, no, I'll not give the hint. Who was Abdul Hamid Lahori?
ये भी एनसीईआरटी बुक में, सारा एनसीईआरटी बुक में. I'm discussing questions because I have seen questions sometimes they are asking directly from NCERT book. तो एटलीस्ट कुछ प्रोमिनेंट क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए. अच्छा, किसी ने सुना है एक चैप्टर में पूरा डिस्कशन है, बाबर नामा, हुमायूं नामा, ठीक है, अकबर नामा, फिर पातशाह नामा. पातशाह नामा है, बादशाह नामा को बादशाह नामा कहते थे. नहीं, इट इज ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ शाहजहां. शाहजहां का कोर्ट पोएट था. शाहजहां नामा या पादशाह नामा लिखा था अब्दुल हमीद लाहौरी ने. बी इज द राइट आंसर. यस, धात्री इज राइट, दीप्ताक्षी इज राइट. ठीक है. तो बाबर नामा बाबर ने खुद लिखा था. हुमायूं नामा उनकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने लिखा था. अकबर नामा अबुल फजल ने लिखा था. और पादशाह नामा या बादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था शाहजहां के बारे में. सो दीज आर मेंशन. क्रॉनिकलर्स करके एक एनसीईआरटी बुक का चैप्टर है, ठीक है, उसमें दिस इज एक्चुअली मेंशन्ड, सो यू शुड नो इट. नाउ दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. मतलब ये आपने स्कूल डेज में सुना होगा. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री. कहां एस्टैब्लिश किया था, कौन सी जगह, ये बता दो. एंड हु गेव द परमिशन फॉर दैट. आपने सुना होगा कैप्टन हॉकिंस, थॉमस रो, ये सब इनके दरबार में आता है परमिशन लेने के लिए. दे ऑल कम एंड टू आस्क परमिशन एंड ऑल. औरंगजेब? नो, इट्स नॉट औरंगजेब. फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में 1630 वगैरह कुछ आसपास है. सूरत गुजरात में, जहांगीर के कोर्ट में आते हैं. यस, प्राप्ति, वेरी गुड. बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है. फर्स्ट फैक्ट्री वाज इन सूरत. वेरी 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 फेमस. सूरत तो पता होना चाहिए. यस, दीप्ताक्षी, राइट. The next is, ये भी डायरेक्टली मेंशन है एनसीईआरटी बुक में, इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी. फतेहपुर सिकरी इज आई थिंक 30-40 किलोमीटर फ्रॉम आगरा. सो अकबर ने एस्टैब्लिश किया था, ठीक है, नया कैपिटल फतेहपुर सिकरी. ठीक है, आगरा से मूव करके फतेहपुर सिकरी ले आए थे. ठीक है. एंड ही एस्टैब्लिश इबादत खाना देयर. Yes, Deeptakshi, future analyst student. Right. The right answer is the hall in which he used to hold discussion with various scholars. तो इसमें करते ये थे कि he used to call people or priest from all the religion. सारे रिलीजन से प्रीस्ट बुलाते थे और उनसे डिबेट डिस्कशन, मतलब उनसे सबसे राय लेते थे एंड ऑल. ठीक है. That is why he gave the concept of दीन इलाही and all someone had written. ठीक है. So C is the right answer. ठीक है. यही आपको एक ये मिलेगा फतेहपुर सिकरी में. यू विल फाइंड दिस बुलंद दरवाजा. ठीक है. और मैं किसी क्वेश्चन का पीवाईक्यू देख रहा था, उसमें ये पूछा था, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट गेट ऑफ द वर्ल्ड. तो पूछा ये था, आई वाज सीइंग अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सम एग्जाम, कि बुलंद दरवाजा वाज मेड बाय अकबर फॉर व्हाट, फॉर टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात. विक्ट्री ओवर गुजरात. ठीक है. सो इसी याद में बुलंद दरवाजा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट गेट ऑफ द वर्ल्ड एट फतेहपुर सिकरी. ठीक है. Okay, so this you should be knowing it. Okay, ये मैंने बता भी दिया है, कई बार बताया है. And this is a very prominent questions. एम्परर अशोका के बारे में है ना. फर्स्ट डेसिफर द एडिक्ट्स ऑफ एम्परर अशोका. अभी मैंने बताया हाफ एन आवर बैक. जेम्स प्रिंसेप. हाँ, यस, धारिणी, प्राप्ति, फ्यूचर एंड स्टूडेंट, राइट. दिस इज मेंशन इन एनसीईआरटी बुक एंड डायरेक्टली. ठीक है. इट टॉक्स अबाउट इट कि मास्की एडिक्ट जो मैंने बताया था, देवनम, प्रिया, प्रियादर्शी, दीज ऑल आर एक्चुअली हियर. सो बी इज द राइट आंसर. ठीक है. देखते हैं, ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट स्टिल लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर. Eradication of child marriage and Pada system. मैं आपको एग्जाम बस हिंट देता हूं. ही वाज अ एक्स हाई कोर्ट जज. बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे बिफोर इंडिपेंडेंस. आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है. लोग ऐसी विद्यासागर बोल रहे हैं बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट चाइल्ड मैरिज एंड विडो रीमैरिज, है ना. लेकिन इंडियन नेशनल साइंस सोशल कॉन्फ्रेंस एक्चुअली दिस वाज एक्चुअली एमजी रानडे. So C is the right answer. Yes, Dharini, very good. ठीक है. I know it was a tough question. तो
जस्ट रिमेंबर इट. उन्होंने एक बहुत फेमस संस्था बनाई थी, पुणे सार्वजनिक सभा, and that is why he is also famous. He was also a judge at Bombay High Court and all. Okay. Now the next one is suppression of thugs. It was done during the time of Lord William Bentinck. हाँ, जस्टिस एम जी राणा डे इसीलिए लिखते, लॉर्ड विलियम बेंटिक के जमाने में एक ऑफिसर था, उसने ना जितने भी ठग्स फ्रॉड्स थे सबको सप्रेस कर दिया था. एंड द पर्सन हु इज गिवन द क्रेडिट इज कैप्टन स्लीमन. सो बी इज द राइट आंसर. जस्ट रिमेंबर द नेम. ठीक है. हाँ, ये बहुत फेमस है ये वाला. विच इंडियन रूलर एस्टैब्लिश एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज. उस टाइम पर उस बंदे ने एम्बेसी एस्टैब्लिश की थी दूसरे कंट्रीज में, फ्रांस, टर्की एंड अदर प्लेसेस. एंड दिस यू शुड बी नोइंग इट. People from South India should at least be knowing it. Tipu Sultan, Mysore king from Mysore, so D is the right answer. Okay, so this you should be knowing it. Okay, है ना, ये बहुत famous है, मतलब I'm sure you must be knowing it. Yes, President Dharani, Deeptakshi, you all were right. Who among the following Englishmen first translated Bhagavad Gita into English? अच्छा, Bhagavad Gita is a dialogue between which two personality? A dialogue between. Yes. The right answer is actually Charles Wilkin. Very good. B is the right answer. Dharini, Abhijay Tiwari, you all right. It's a dialogue between Lord Krishna and Lord Arjun, right? Yes, very good. Yes, Dharini, Kargi, Venkat, you all right. Future yes. Yes, Deeptakshi, good. Okay. And in fact, that's actually a part of Mahabharata and all, है ना. तो चार्ल्स विल्किन ने और विलियम जोस ने मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाली बनाया था 1784 में. दिस इज आल्सो वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्जाम्स. ठीक है. नाउ दिस इज आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन. सी एंड डी वेर हेड ऑफ एएसआई. यस, आर्कियोलॉजिकल सर्वे. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सिपॉय म्यूटिनी. कौन सी सिपॉय म्यूटिनी की बात हो रही है? We are talking about 1857 revolt. So who was the British officer heading India? Governor General मतलब वही थी, British officer who was heading India when 1857 revolt happened. 1857 revolt. Yes. Yes, future and yes, you're right. One of the reason was that. And Dhatri has answered me correctly. It's Lord Canning. Anna. Or President Tiwari, you're also right. Okay, Lord Canning. Lord Dalhousie just hate the 1848 to 56 he was there. And just hate hi janab aaye, or he witnessed actually 1857 revolt. हाँ, one of the reason, immediate reason वही था, greased cartridges का issue था. Because there was news that spread that grease cartridges are made from pork and cow meat and all, and that is why both Hindus and Muslims revolted and all. So I hope you are aware of it. मंगल पांडे वाला इंसिडेंट थोड़ा पहले हुआ था बैरकपुर में. ठीक है, that was few months earlier. ये grease cartridges वाला इंसिडेंट, it started from Meerut cantonment, है ना. So this you should be knowing about it, है ना. Now this is very easy question. I have discussed so many times in my classes. So I believe that you all should be knowing it. Radcliffe Commission. Radcliffe line जो है वो किसकी बाउंड्री है? I have told you Radcliffe line is a boundary between India and Pakistan, India and Bangladesh. And उस time पे Bangladesh was called as East Pakistan at the time of independence. So C is the right answer. Yes, Abhijay. But आप लोग क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हो? Yes, Dharini, Dhatri, Pristine, Venkat, Gargi, Dharini. All right. So C is the right answer to this question. It's very easy, है ना.
तो ये वाली जो लाइन है ना और ये वाली लाइन, इसको हम लोग रैटक्लिफ कमीशन कहते हैं। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट वन इज दिस क्वेश्चन, प्लीज रीड इट केयरफुली एंड देन आंसर मी। अच्छा, पहले ये बताओ, ब्राह्मो समाज किसने लॉन्च किया था? हु लॉन्च दिस? कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राह्मो समाज, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, यस, विच इज करेक्ट अबाउट द कॉन्सेप्ट। यस, प्रेसिडेंट तिवारी, और एक राजा राम मोहन रॉय। ग्रेट ग्रेट। हाँ, राजा राम मोहन, राइट। Oh, that was RS Raj. Yes, Dharini. The right answer is B. Yes, Gargi is right in future and Shreyas will. ये वाला जो लाइन है ना, this concept was given by आर्य समाज। आर्य समाज फाउंडर दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती का डिस्कशन है एनसीईआरटी बुक्स में था। ठीक है, खैर। तो दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय इनफैलिबिलिटी ऑफ वेदास और गो बैक टू वेदास। तो ये ब्राह्मो समाज का नहीं दिया हुआ, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती जी का। सो 1 और 2, राइट आंसर इज बी। ठीक है, हाँ, जिन लोग डीएवी स्कूल चलाते हैं, हाँ, दे आर फॉलोअर्स ऑफ इट, दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, सो द राइट आंसर इज बी, इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट वन इज, दिस इज अ वेरी फेमस थिंग, गदर पार्टी। No, Ghadar is actually an Urdu word which means revolt. जो सिंगापुर वाला है वो आईएनए था, इंडियन नेशनल आर्मी, आप उससे कंफ्यूज कर गए हो। इट्स नॉट सिंगापुर। इंडियन नेशनल आर्मी जो मोहन सिंह ने बनाया था, दैट वाज मेड बाय मोहन सिंह एंड लेटर ऑन पॉपुलराइज्ड बाय सुभाष चंद्र बोस। वो आईएनए था, इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद फौज। गदर जो था ना, वो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में बनाया गया था 1913 के आसपास। ठीक है, सो दिस यू शुड बी नोइंग इट। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यस, धात्री इज राइट, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया है या यूएस है, यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को जगह था। ओके, एंड उसमें सोहन सिंह बकाना, ठीक है, दे वेरी फेमस पर्सनालिटी, लाला हरदयाल, सोहन सिंह बकाना, ये सब थे गदर पार्टी में। ठीक है, वो एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज था 1913 में वो लोगों ने स्टैब्लिश किया था, यानी यहाँ स्टैब्लिश किया था सैन फ्रांसिस्को में, सो दैट वी शुड गेट इंडिपेंडेंस इन इंडिया। इवन फॉरेन, मतलब बाहर में भी इंडियंस ने बहुत जगह कोशिश की थी। ठीक है, टू स्टैब्लिश एन अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट ब्रिटिश एंड ऑल। ठीक है, दिस इज अ वेरी पॉपुलर इंसिडेंट इन मॉडर्न हिस्ट्री। सूरत स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं, where actually in Surat session the split happened, है ना, within the Congress। जिसने भी एकदम थोड़ा सा भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा, एकदम बेसिक भी पढ़ा होगा, एंड ही शुड बी आंसरिंग इट। बस ये कि क्वेश्चन ऑप्शंस जो है थोड़ा सा घुमाया हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा यू हैव टू थिंक, बट अदरवाइज यस, यस, धारणी, प्राप्ति, दीप्ताक्षी, दात्री, ऑल राइट। बेसिकली देयर वाज अ टसल बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, बस यही ऑप्शन में तो दिख रहा है ना। सो द एक्सट्रीमिस्ट वर एक्सपेल्ड एंड ऑल। एक्सट्रीमिस्ट में लोग थे ना, लाल बाल पाल घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल एंड घोष, और अरविंदो घोष। यस धारिणी, राइट। हाँ, और मॉडरेट्स में थे, वी हैव फिरोज शाह मेहता, केटी तिलांग, दादा भाई नारोजी। ठीक है, सो दीस आर द पर्सनालिटीज। ठीक है, so that is what you should be knowing. Now let me see how many of you can answer this. सीपीआई क्रिएशन इससे रिलेटेड नहीं, वो 1920s में हो तो अलग। महात्मा गांधी started civil disobedience movement.
He started civil disobedience through डांडी मार्च, कि हम लोग पैदल जाएंगे डांडी, तो साबरमती से डांडी जाना था. सो स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती ना, स्टार्टेड पूछा जा रहा. सो सी इज द राइट आंसर. यस, धरणी दीप्ताक्षी प्रेस्टिन तिवारी, प्रेस्टिन पटवारी, ऑल राइट. तो साबरमती आश्रम था गांधी जी का यहाँ पर, है ना, अहमदाबाद में, और ये वॉक करके यहाँ जाना था डांडी. ठीक है, ये स्टार्टेड, और ये डांडी मार्च इज एक्चुअली द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. आई होप यू आर अवेयर. यस, सी इज द राइट आंसर. नाउ ये भी आपने सुना होगा. ये बहुत, ये सब आसान क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है. If you have read little bit of history, you can answer it. These are not very difficult, appears to be very difficult. तो कैसे पकड़ना है, ईयर्स देखो, कुछ याद आ रहा है? यस, रॉलेट एक्ट. यस, उसके बाद जब रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ, दैट लेड टू जलियांवाला बाग. यस, मैसेकर 13 अप्रैल 1919, और ये आया था मार्च 1919 में, रॉलेट एक्ट. गांधी जी कॉल्ड इट एज ब्लैक एक्ट बिकॉज एनीवन कैन बी अरेस्टेड फॉर 2 years विदाउट ट्रायल. ठीक है, यस, ब्लैक बिल, राइट दीप्ताक्षी, ग्रेट. सिद्धार्थ धरनी. हाँ, तो ऐसे सोचना है. ठीक है, इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. जस्ट थिंक इन दिस वे, यू विल बी एबल टू हैंडल इट. नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें से कुछ तो आपने जरूर सुना होगा. प्लीज आंसर इट. ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे एग्जाम में पूछते हुए देखा है. सरफरोशी की तमन्ना, दिस वॉज रिटन बाय होम, को बता सकता है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में. दिस लाइन वॉज पॉपुलराइज्ड बाय राम प्रसाद बिस्मिल, but it was written by someone else. राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी केस 1925, बीकापुर, बहुत फेमस थे. ठीक है, चिटागांग आर्मरी रेड इज सूर्या सेन, ए का 3, बी का 4 कहाँ है? तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. ठीक है, गदर पार्टी भी मैंने बताया, जतिन दास एक्चुअली डी का 2 वाज एसोसिएटेड विद दैट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. नहीं सॉरी, डी का 1 लाला हरदयाल, डी का 1. सो द राइट आंसर एक्चुअली इज सी. ठीक है, चिटागांग आर्मरी, चिटागांग एक्चुअली इज अ प्लेस इन बांग्लादेश टुडे, 1930s, सूर्या सेन. ठीक है, काकोरी के कांड बहुत फेमस है. राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्लाह खान, सुना होगा आपने. You must have heard these two names, Ram Prasad Bismil and Ashfaqullah Khan. Okay, so they did Kakori conspiracy where they looted like in 1925, है ना. The train में, लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन है, तो ट्रेन में ब्रिटिश के आर्म्स जा रहे थे, they looted that and all. Yes, सरफरोशी की तमन्ना मैं पूछ रहा था किसके द्वारा लिखा हुआ है, and I have got the right answer. धात्री is right, very good, great. सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना, इट्स हैज बीन रिटन बाय बिस्मिल अजीमाबादी. अजीमाबाद पटना को कहते थे. सो बिस्मिल अजीमाबादी वाज फ्रॉम पटना, एंड इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय दीस टू पर्सनालिटीज. व्हेन एक्चुअली कहा जाता है कि जब दे वर बीइंग हैंग्ड, दे रिसाइटेड दिस, है ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ना. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. सो सी इज द राइट आंसर. ठीक है, एंड है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए. एंड फिर एक चंद्रशेखर आजाद भी थे इन लोगों के साथ. देयर वाज अनदर पर्सनालिटी कॉल्ड एज चंद्रशेखर आजाद. ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, दे वर एसोसिएटेड विद दिस, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, व्हिच लेटर बिकम HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, आफ्टर द एडिशन ऑफ भगत सिंह, जब भगत सिंह आ गए तब, है ना. So this you should be knowing it. So these are basic history which you should be knowing about it. So we are ending this class here. Please subscribe to the channel and press the like button. So thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.